So again we have started classes for entry test. तो आज हमारा टॉपिक है फोर्स, ओके, एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन. So without wasting our time, we will come to the point. We know that F is equal to ma. Force is equal to mass times acceleration. Okay, F is equal to ma. So here unit of force, unit of mass is kilogram, and unit of acceleration is meter per second square, meter per second square, which is equal to Newton. So this is force, and unit of force is dynes also. 1 Newton is equal to 10 raised power 5 dynes in CGS system. So now, so why I have written here second law of motion? So this is definition of force from second law of motion. F is equal to ma. When a force act on a body, when an external force act on a body, it produces acceleration. So this is second law of motion. So we have another definition. So this is my focus. Rate of change of linear momentum is equal to force. Rate of change of linear momentum is equal to force. This is definition of force from second law of motion. Rate of change of momentum. So rate of change of momentum, it means change in momentum is delta p, okay, divided by time. This is rate of change of momentum. It means if you compare momentum with time, then it will be equal to what? This will be equal to force. Okay, so we can prove it from here. We can prove it. F is equal to delta p upon t. So F will be equal to delta p. So we know that momentum is product of mass and velocity. So change in momentum is final momentum minus initial momentum divided by time. तो अब हम क्या करेंगे? F will be equal to what is final momentum? Momentum is product of mass and velocity. So mass will remain same. So this is final velocity minus mass into initial velocity divided by time. Again, F is equal to m common. This is Vf minus Vi divided by time. So F is equal to m Vf minus Vi upon t is equal to A. So this is proof that rate of change of linear momentum is equal to force. So now if you divide momentum with time, then you will get force. तो आपको ये MCQ भी दे सकते हैं. अगर मोमेंटम लेट सपोज 10 न्यूटन सेकंड है और आपको टाइम दे दें 2, सो 10 को 2 से डिवाइड कर लें तो आपको फोर्स मिल जाएगा 5 न्यूटन. ओके, अगेन नाउ here t is in division, here t will multiply. So delta p is equal to f into t. So this is impulse. This is impulse, product of force and time. Impulse. Product of force and time. So now अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो टाइम कम भी हो तो काम चलेगा. अगर फोर्स कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा. ठीक है, दिस इज लाइक दिस. तो अब इम्पल्स का यूनिट क्या होगा? इट मीन चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स. बेसिकली डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू टी. दिस इज इम्पल्स. So delta p is equal to unit of force is Newton, again time second. Unit of impulse is same as unit of momentum, Newton second, and again their dimension will be same, m l t minus 1. Okay, so now
this is all about momentum and force and impulse. Okay, our final equation was delta p upon t is equal to F, then delta p is equal to F into t. Okay, delta p is equal to F into t. So now यहाँ से डिफरेंट प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। आपको चेंज इन मोमेंटम भी दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं और फोर्स पूछ सकते हैं। आपको फोर्स और मोमेंटम दे दें, टाइम पूछ सकते हैं। यू मस्ट नो हाउ टू यूज दीज इक्वेशंस। सो चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एफ इंटू टी. So final momentum will be equal to F into T plus VI. आपको ये भी दे सकते हैं, सॉरी PI. दिस इज PI इनिशियल मोमेंटम. सो आपको ये भी दे सकते हैं। अगर आपको कहें एक ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम था, लेट सपोज 12 था, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया 2 सेकंड के लिए, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? ही इज आस्किंग अबाउट फाइनल मोमेंटम. ओके, अगेन वी कैन सोल्व. एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम था 12, पी आई की जगह पे क्या पुट करेंगे? 12. फोर्स लगा, लेट सपोज 5 न्यूटन कर दें 2 सेकंड्स के लिए, तो कितना हो जाएगा फाइनल मोमेंटम? तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? पी एफ विल बी इक्वल टू 2 5 द 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 22 न्यूटन सेकंड. दिस इज हाउ यू कैन बी गिवन डिफरेंट प्रॉब्लम्स. देखें, ये फार्मूला है, इस फार्मूला की तरफ स्टूडेंट्स का फोकस कम जाता है. देखिए, फार्मूलाज बनाने पड़ते हैं. इफ़ यू नो हाउ टू प्ले विथ इक्वेशंस, एंट्री टेस्ट इज इजी. सो नाउ दिस इज all about impulse, momentum and force. Now law of conservation of momentum. Of linear momentum. Momentum remains same. Momentum remains same if no external force is acting on the body. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो उसका मोमेंटम सेम रहेगा. इसको ये भी हम लिख सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन सेम. मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन सेम. आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? सिंपल, ये आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. तो मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन सेम. अगेन वी कैन प्रूव डेल्टा पी अपॉन टी इज इक्वल टू एफ. ये तो हमने पीछे भी ड्राइव की इक्वेशन. सो नाउ डेल्टा पी अपॉन टी, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग देन इट विल बी 0. अगेन टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी 0. नाउ देखें, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग देन मोमेंटम, this there is no change in momentum. Delta p is 0. Delta p is pf minus pi. Final momentum minus initial momentum is equal to 0. Then final momentum is equal to, इसको यहाँ ले जाए, will be equal to initial momentum. There will be no change in momentum if there is no external force acting on the body. यहाँ पे just f को 0 कर लें, f को 0 कर दिया, यहाँ पे ये 0 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया t, तो चेंज इन मोमेंटम 0. सो दिस इज ऑल अबाउट फोर्स. यहाँ से हमने स्टार्ट किया फोर्स से और हमने ये समझा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. डेल्टा पी अपॉन टी इज इक्वल टू एफ.
यहाँ पे हमने प्रूफ किया डेल्टा पी अपॉन टी एफ के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये समझा इम्पल्स क्या होता है, और ये भी समझा कि इम्पल्स का मतलब ही चेंज इन मोमेंटम है। ठीक है, और फिर हमने ये समझा इम्पल्स पे आपको कैसे थोड़ा लॉजिकल प्रॉब्लम दे सकते हैं। फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया विद द हेल्प ऑफ दिस डेल्टा पी अपॉन टी इज इक्वल टू एफ, डेल्टा पी अपॉन टी इज इक्वल टू एफ, नो एक्सटर्नल फोर्स एफ शुड बी ज़ीरो, ये मैथमेटिकल है। टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो, पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू ज़ीरो, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग then final momentum is equal to initial momentum. This is conservation of linear momentum. अगले टॉपिक में हम करेंगे एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और उसका टॉर्क से रिलेशन।